Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 5th July 2020. So let us see which are the important articles that have appeared in today's newspaper. You can see that for mains examination and for prelims examination these are the articles. Now let us try to understand one by one. So ये आर्टिकल जो है हम बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ रेलवेज़ के बारे में है. हमने पहले भी एक आर्टिकल इसके बारे में देखा था. नाउ दिस इज़ लिटिल बिट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट पार्ट. रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लेट्स से सेट आउट ए प्रपोजल फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू इन let's say come in railway sector, right? So that's why the article is talking about. Now there are some what you can say significance of this moves and then some problems, whether it is sustainable. All the analysis is given in this article along with some committees and their recommendations. So let us see, if you go through the background, starting of privatization, here you can mention that the IRCTC was given a pilot Tejas operations New Delhi to Lucknow and Mumbai to Ahmedabad sectors. This was the first trains allowed to run by a non-railway operator. ठीक है, भले हम बोल सकते हैं कि IRCTC में मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का ही है, हाउएवर उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी है, ठीक है, उनका भी स्टेक है. सो विवेक डेब्रॉय कमिटी रिपोर्ट 2015, व्हाट इट सेज इज दैट वे फॉरवर्ड फॉर रेलवेज वाज लिबरलाइजेशन एंड नॉट प्राइवेटाइजेशन. दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन जैसे कि हम बोलते हैं कि वी कैन स्टिल हैव व्हाट यू कैन से मेजॉरिटी स्टेक ऑफ गवर्नमेंट एंड सम स्टेक इज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. ओके, एंड इट इज स्टिल लार्जली ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट. However, liberalization means the state is not a regulator, or rather it will be called as facilitator, and what happens is there is a pure competition between the state and private players. There is a pure competition between players, private players and state, and state will act as a one service provider along with private players, and there will be complete let's say largely autonomy for these private players also to work according to their what you can say abilities. So that's why liberalization and not privatization, this was let's say recommended by Vivek Debroy committee, and the regulatory mechanism was prerequisite to promote healthy competition and protect the interests of all stakeholders. तो अभी जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटर की ज़रूरत होती है जहाँ पे भी हम कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में देर आर चांसेस दैट दीज लार्ज कंपनीज in that competition there may not be a perfect competition, and that's why to avoid any what you can say uncompetitive practices in that what you can say market, there is a need of regulatory mechanism, and therefore in railway sector also there is a need of a independent regulator. Significance of the move for Indian railways, we need to know some basic facts like low density of railways in India. So in terms of tracks, okay, तो ट्रैक लेंथ पर एरिया उसके बारे में देखा जाए तो वो कम है. भले ही ट्रैक लेंथ के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड में हम थर्ड या फोर्थ आ सकते हैं, बहुत लंबा हम देख सकते हैं कि वो ट्रैक लेंथ हमने एक्सपांड किया हुआ है. However, still looking at the area that is covered in India, it is still having less density. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं उस बारे में. एट द सेम टाइम उसमें एक डायनामो इफेक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि चेन इफेक्ट है. व्हेन इट वाज एस्टिमेटेड दैट 1 rupee पुश इन रेलवे सेक्टर वुड हैव ए फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट इन अनदर सेक्टर्स बाय 2.5. वी नो दैट द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो जिसके बारे में बात करते हैं हम, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में फाउंडेशन होता है अदर सेक्टर्स के लिए, और इसलिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से डेवलप होगा बाकी सेक्टर भी अच्छे से डेवलप. डेब्रॉय कमिटी फाउंड दैट द सिग्निफिकेंट इट इज सिग्निफिकेंट टू मेक द मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव फॉरवर्ड. ठीक है, तो मेक इन इंडिया में हम बोल सकते हैं उसके लिए यूज़फुल होगा.
Also panel noted that the passengers were willing to pay more if they had better quality of travel and ease of access. ये भी एक चीज़ है, ठीक है, तो आपको ऐड कर सकते हैं ये पॉइंट्स की बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है. तो along these benefits, in earlier lecture we have seen that when private entity enters in any sector, there are 4 important points. It brings first investment, second it brings technology, third it brings efficiency, and fourth it brings professionalism. तो ये 4 पॉइंट्स अभी फिर रेलवे में आएंगे अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, और हम देखते हैं कि ये चारों पॉइंट पे कहीं ना कहीं रेलवे में प्रॉब्लम है, ठीक है. इफ़िशियंसी नहीं है या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, हम बोल सकते हैं प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बीइंग गवर्नमेंट प्लेयर, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टेटस को है मेंटेन किया गया. तो हम बोल सकते हैं प्राइवेट प्लेयर की एंट्री की वजह से it will move ahead in terms of technological development, in terms of efficiency, all these things, okay. It will bring professionalism in railway sector also. But it is sustainable. Is it sustainable? Railways have been a obligation of social service to connect remote locations and provide subsidized travel. आप बोल सकते कि being a government service provider, उनका मेन ऑब्लिगेशन यही था कि कम से कम प्राइस लेवल्स पे, टैरिफ लेवल्स पे जो हम बोल सकते हैं एक पुअर लोगों को ये सर्विस दिया जाएगा, ठीक है. तो उसको सोशल सर्विस के एस्पेक्ट से हम बोल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस जिसको हम बोलते हैं, फाइन. एट द सेम टाइम वी नो दैट प्राइवेट ऑपरेटर्स विल फोकस ऑन प्रॉफिट मेकिंग. तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है. तो ये एक कंसर्न है, हम बोल सकते हैं. However, we know that at present the government is using this as a pilot project, and we know that only 5% of total operations are given to private sector at present. ये proposal के through 95% still the let's say railways itself is going to run all the operations. Fine. तो उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए एज रिकमेंडेड बाय अर्लियर एक्सपर्ट कमिटीज इंक्लूडिंग दिस विवेक देबरॉय कमेटी. तो ये कमेटी का नाम याद रखिए, जब भी मॉडर्नाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ऑफ रेलवेज की बात होगी तो विवेक देबरॉय कमेटी और इनके रिकमेंडेशंस आंसर में लिखने ही चाहिए GS3 में, इकोनॉमी से रिलेटेड. फाइन. सो वी नो दैट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इज एज अ पायलट प्लान एंड नॉट फुल फ्लेज प्रोग्राम, ठीक है. तो आप आंसर में कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं. फाइन. So for further more information you can refer to 3rd July 2020 द हिंदू एनालिसिस, जिसमें हमने एडिशनल पॉइंट्स कुछ लिखे थे, ठीक है, इसी टॉपिक के बारे में. Yes, the next article it is saying that US moves 2 aircraft carriers to South China Sea. तो ठीक है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी अभी न्यूज़ में ही रहते हैं. तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. मेंस से रिलेटेड आप इंटरनेशनल रिलेशंस में लिख सकते हैं कि साउथ चाइना सी एंड इट्स जियोपॉलिटिक्स. तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स ने USS रोनाल्ड रेगन एंड USS निमित्ज, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे भेजे एक सीक्रेट एक्सरसाइज के लिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, ठीक है. अब ये कब किया गया है, जब चाइना खुद ही एक्सरसाइज का उन्होंने प्लान किया था, चाइना ने साउथ चाइना सी में. देखो, एट द सेम टाइम चाइना इज कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन द कंटेस्टेड वाटरवे, ठीक है. तो कहाँ पे ये चाइना करने वाला था, नियर पैरासेल आइलैंड्स विच आर क्लेम्ड बाय बोथ वियतनाम एंड चाइना. तो आपको बैकग्राउंड तो पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने दिया था कि अभी आसियान का समिट हुआ था, वर्चुअल समिट, तो उसमें भी हमने क्या बात की थी, दैट वी हैव सेड दैट यस देयर आर कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स इन साउथ चाइना सी ओवर सर्टन आइलैंड्स. तो उसमें स्पार्टली आइलैंड्स की भी बात हुई थी, राइट. सो दीज आइलैंड्स आर क्लेम्ड बाय मेनी कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज चाइना, ठीक है. तो वियतनाम है, फिलीपाइंस है, ताइवान है और चाइना और मलेशिया, ये सारे कंट्रीज़ जो है इन आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करते हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स. तो कहाँ पे है ये देख सकते हैं आप मैप, और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए.
ठीक है, तो ये है पैरासेल आइलैंड्स और ये है स्पार्टली आइलैंड्स, ठीक है। तो दीज बोथ आर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। यहाँ पे जो फिलीपाइंस है ये ज़्यादातर स्पार्टली आइलैंड्स पे ज़्यादा क्लेम करता है, ये यहाँ पे जो ये पूरा वियतनाम है तो ये पैरासेल आइलैंड्स पे चाइना और ये ज़्यादा क्लेम करते हैं। फाइन, सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यू कैन सी दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन साउथ चाइना सी। तो ज्योग्राफी में इस तरीके से मैपिंग वाला क्वेश्चन हम हर साल 2 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जब न्यूज़ में होते हैं ना ऑल टाइम, जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि ये जो सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में थोड़े दिन पहले ही हमने द हिंदू एनालिसिस में देखा था कि इट इज़ डिस्प्यूटेड आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी, नॉट इन साउथ चाइना सी। और किस कंट्री के साथ डिस्प्यूट है इसका? जापान के साथ, ठीक है। तो चाइना और जापान में डिस्प्यूट होगा तो वो कहाँ पे होगा? ईस्ट चाइना सी में। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ होगा तो it will be in South China Sea, and in South China Sea there are 2 islands, Paracel Islands and Spratly Islands, और ये जो है वो ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। नाउ ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज, पैथोजेंस एंड प्रेडिक्शन, तो इस आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है जो फ्यूचर में हमें और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि ये अभी हम कोविड-19 डिसीज़ का जो बोल रहे थे, ठीक है, तो अगर आप 7-8 महीने पीछे जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट सच काइंड ऑफ हाईलाइट, सच काइंड ऑफ अलर्ट्स वेर गिवन एट दैट टाइम ऑल्सो, ओके, बिफोर कोविड-19 बिकमिंग पैंडमिक। जब ये चाइना में वुहान प्रोविंस में स्प्रेड हो रहा था तभी ये बोला गया था कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से ये नया वायरल इन्फेक्शन आ रहा है चाइना में पिग्स के थ्रू, ठीक है, उसको बोला गया है G4EA-H1N1। तो ये नया वायरस का स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू का, H1N1 का। अब हमें पता है H1N1 पुरानी यादें 2009 की, ठीक है, जब ऐसे ही लॉकडाउन हुआ था 15 दिन के लिए इंडिया में स्वाइन फ्लू की वजह से, ठीक है। तो वो H1N1 अभी ये नया स्ट्रेन आया है उसका, और ये पिग्स के थ्रू जो पिगरी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं ना, तो उनके अंदर इस वायरस के लिए एंटीबॉडीज मिली है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस G4 वायरसेस, they are having all essential hallmarks of becoming a candidate for pandemic virus. So let us say that ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फ्यूचर में चांसेस है कि ये भी एक नया पैंडेमिक वायरस आ सकता है, ठीक है। तो ये एक अलर्ट सिस्टम दे रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि डिसीज़ या पैंडेमिक रिस्क सर्विलेंस का इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो कोविड-19 हो, सार्स हो, मर्स हो, ये सारे वायरस जो ये अभी आगे चल के 21st सेंचुरी में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है, पैंडेमिक रिस्क सर्विलेंस। व्हाई? बिकॉज द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स they have been successful in predicting dengue, Ebola outbreaks and other such diseases and enabling health systems to be pre-warned and prepared to tackle the challenge. हमें पता है डेंगू का आउटब्रेक हो गया कि इमीडिएटली उसका वार्निंग मिल जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल हेल्थ का सिस्टम होगा या सिटी का हेल्थ का सिस्टम होगा, दैट इज़ अगेन एट वर्क, वी कैन से दैट इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ दिस health warning, pre-warning. At the same time it is suggesting way forward, vigilance, vigilance, vigilance. जैसे हम कोविड में देखते हैं कि टेस्ट और टेस्ट ये यूज़ किया जा रहा है अभी कोविड-19 पैंडमिक में, कि यही एक सॉल्यूशन है राइट नाउ, टेस्ट करना बहुत सारा। तो वैसे आगे हम सोच सकते हैं कि विजिलेंस 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 ही एक यूज़फुल होने वाला है to prevent such kind of outbreaks and let's say deal with these challenges. Okay, तो WHO का अभी एक ऐसे है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क, GOARN, तो वो इसी के बारे में है, सर्विलेंस के बारे में, रिस्क सर्विलेंस के, ठीक है। तो वी नीड टू हैव सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स इन फ्यूचर
so as to tackle these let's say unforeseen challenges in health sector. फाइन, तो ये वायरस के बारे में प्रीलिम्स के आपको पता होना चाहिए. G4EA-H1H1 स्वाइन फ्लू का नया स्ट्रेन है. फाइन. द नेक्स्ट आर्टिकल अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज. हाउ ए फंगस ग्रोज इनसाइड ए बग एंड गोज ऑन टू किल ए एंड फीड ऑन इट. तो इसके बारे में बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि एक फंगस जो है उसका टाइप, ये वर्ड जो है ओफिकॉर्डिसिप्स न्यूटन्स. तो ये जो फैमिली है फंगस की ओफिकॉर्डिसेप्स, तो ये जनरली क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं या पेस्ट्स को. और जो पेस्ट्स होते हैं जनरली, जैसे ये इस केस में है स्टिंक बग, इट अटैक्स फॉरेस्ट ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स. ठीक है, तो उसको अटैक करके वो उस पर फीड करता है, उसको मार डालता है फंगस. ठीक है, तो ये एक नया रिसर्च आगे आया हुआ है. एंड नाउ दिस कैन बी यूज फॉर टू इम्पॉर्टेंट पर्पजेस. वन इज दैट यूजिंग फंगाई एज अ बायोपेस्टिसाइड एंड सेकंड इज यूजिंग फंगाई एज अ मेडिसिन. मेडिसिन कैसे बोला गया है? ये मेडिसिन इसलिए बोला गया है कि इन वेस्टर्न घाट्स लोकल पीपल यूज दिस फंगाई एज इम्यून स्टिमुलेटर. या इसमें विटामिन सी होता है और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी यूज हो सकता है. एट द सेम टाइम इट कंटेन्स कंपोनेंट कॉल्ड एज कार्डिसेपिन विच इज हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. तो हमें ये पता होना चाहिए कि फंगाई का क्या क्या यूज़ है. तो फंगाई का यूज़ क्या है, यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई है, बायोपेस्टिसाइड और मेडिसिन. दूसरे बेसिक साइंस में हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है कि फंगाई जो है वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बराबर है. जैसे कि यीस्ट जो है फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेड जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है यीस्ट को, राइट. या हम बोल सकते हैं कि मशरूम जो है वो एक खुद फंगाई है और मशरूम हम खाते हैं एज अ फूड. तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में पढ़ी है. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा प्रीलिम्स में. फाइन. सो which of the following is or are uses of fungi? तो पेस्टिसाइड, मेडिसिन, फूड इंडस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको या फार्मिंग प्रोसेस में भी इन फंगाइज का यूज़ होता है. फंगाई का कैसे यूज़ होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? तो वहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है रूट्स के साथ फंगाई का, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके वो रूट्स को दे सकते हैं. ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन. तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसमें. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल, नॉट दैट ऑफ इम्पोर्टेंस बट आपको कुछ एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या कुछ चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि अभी पता है कि स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, और इसलिए अभी इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में पोर्टर कंपनीज, 3 पोर्टर कंपनीज रिक्रूट करने का डिसीजन लिया है अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है. नाउ हु आर दीज पोर्टर्स? वन ऑफ दीज कंपनीज इज फॉर तवांग रीजन. अब ये तवांग रीजन कहाँ पर है? वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 1962 इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे ये चाइनीज मिलिट्री जो है वो वहाँ से अंदर आई थी इंडिया में. ठीक है, तवांग रीजन. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अबाउट पोर्टर्स, ये क्या होते हैं, कौन होते हैं? दे let's say army takes in porters for about 6 months to carry essentials and equipments to and from forward post in high altitude regions like Himalaya. Each porter is treated like a soldier during his tenure. ठीक है, सोल्जर की तरह ही होता है बट वो शॉर्ट टेन्योर के लिए होते हैं और रिन्यूएबल भी होता है उनका टेन्योर. They are paid according to wages of unskilled laborers fixed by Labor Department of States. आर्मी पे नहीं करते हैं. ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? पेड अकॉर्डिंग टू द वेज फॉर अनस्किल्ड लेबरर्स फिक्स्ड बाय लेबर डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये डिसाइड होता है कि जो स्टेट का खुद का लेबर डिपार्टमेंट जो अनस्किल्ड लेबर्स के लिए जो फिक्स करते हैं उतना उनको पेमेंट मिलता है. पोर्टर्स आर इनडिस्पेंसिबल फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट इन एरियाज वेयर व्हीकल्स कैनॉट गो. जो डिफ़िकल्ट टेरेन की बात होती है हिमालयाज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए स्पेशली विंटर में जब स्नोफॉल होता है, सारे रोड्स भी बंद हो जाते हैं, सारा चीज़ें, तब इन पोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है आर्मी के लिए. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़. आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि पोर्टर कौन होते हैं.
Fine. So this was about today's The Hindu newspaper. For further information related to editorial discussion classes, wherein in-depth analysis of mains related articles is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IS. Thank you.